So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 5 of our topic Singularity, in which I'm providing you proper notes, question practice, so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, basically, today we are going to cover the PYQs of NET and GATE exams. And basically, I'm trying to cover your 2013 to 2025 PYQs of each topic of complex analysis. Okay, so let's start our question number 1. In this question, it is given that which of the following statements are true? Tan z is an entire function. Okay, so let's check option number 1. So in the first option, it is given that we have a function f of z is equals to tan z, and we have to check that it is entire function or not. So firstly, what is the meaning of entire function? So entire function means that a function which has no any pole. If a function has no poles, then that type of functions are known as entire functions. Basically, those functions which are analytic over C, means over complex plane, you can say. Okay, so in this case, I can write tan z as sin z divided by cos z. So clearly I can see that from here I can get the singularities, means as a pole I can get cos of z is equals to 0. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? From here clearly z is equals to 2n pi iota are my poles here. तो यहाँ तो मुझे पोल मिल रहे हैं, which means that first option is incorrect. The second option, it is saying that tan z is a meromorphic functions on C. So yes, it's true because it is not entire function, which means it has a pole. So definitely it is a meromorphic function. What is meromorphic function? Meromorphic function is nothing but a function which is analytic on C except poles. So that is true. So second option is correct. Now option number 3, it is saying that tan z has an isolated singularity at infinity. Okay, so let's check it. So we have a function that f of z is equals to tan z, and we have a point z is equals to इन्फिनिटी पर मुझे चेक करना है. तो अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था कि इस फंक्शन के लिए जो हमारे पास पोल्स आते हैं, पोल्स हमारे पास क्या आए थे? इट इज 2n पाई आयोटा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सो द लिमिट पॉइंट ऑफ पोल क्या आ रहा है हमारे पास? लिमिट पॉइंट ऑफ पोल हमारे पास हो जाएगा, इट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n पाई आयोटा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. और क्योंकि हमने पढ़ा है दैट लेक्चर नंबर 2 में हमने ये पढ़ा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल क्या होता है. लिमिट पॉइंट ऑफ पोल एक्चुअली में हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी होते हैं. एसेंशियल सिंगुलैरिटी. सो फ्रॉम हियर इफ आई सी, तो हमें तो यहाँ क्या मिल रहा है? नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. बट यहाँ पे कह रहा है हमसे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. सो द थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. Now the fourth option, tan z has a non-isolated singularity at infinity. Yes, it is true. So the option number B and D are my correct options of this question. Okay. So now let's solve this second question. Basically, this question asked in 2017 NET exam. Okay. So in this question, it is given that consider the function f of z, then f has poles. तो हमें यहाँ पे pole find out करने हैं. So first of all, write down the function. Basically, it is given that sine of, it is pi z by 2 divided by sine of pi z. It is the function we have. तो अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं अपने फंक्शन को सेम एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ. लाइक मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन ऑफ पाई जेड बाई 2, एंड नीचे अगर मैं यहाँ देखूँ सो आई कैन राइट 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई जेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई जेड बाई 2. सो साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो द फंक्शन बिकम्स एफ ऑफ जेड, इट इज 1 अपॉन 2 टाइम्स कॉस पाई जेड बाई 2. दिस इज अवर फंक्शन. और क्योंकि हमसे पोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसके डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ, सो वी गेट द पोल्स. सो फ्रॉम हियर इफ आई सी दैट cos of pi z by 2, okay, so it is pi z by 2
equals to 0. So this becomes the cos of, it is pi z by 2 equals to cos of 2n plus 1 pi by 2. So from here we get pi z by 2 equals to 2n plus 1 pi by 2. So from here pi by 2 will be cancelled out. So we get z is equals to 2n plus 1 is our सिंगुलैरिटीज. सो इफ आई वांट टू चेक दैट क्या सच में ये सिंगुलैरिटीज हमें पोल देंगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए हम चेक भी कर लेते हैं. लेट्स सपोज कि मैंने क्या किया, मुझे चेक करना है कि यार 2n+1 पर हमें सच में पोल्स मिलेंगे. तो मैं अपने इस फंक्शन पर इस वैल्यू को रख दूंगा. सो फ्रॉम हियर वी गेट साइन ऑफ पाई z by 2 एंड विच इज डिवाइडेड बाई साइन ऑफ पाई z. मैं अपने फंक्शन में इसको रख के देखता हूँ. सो फ्रॉम हियर व्हाट आई एम गेटिंग दैट जब मैंने यहाँ पे z की वैल्यू 2n+1 रखा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज साइन ऑफ 2n+1 डिवाइड बाई 2 एंड पाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, इट इज 2n+1 पाई. सो क्लियरली दैट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देन 2n+1 पाई, यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर पार्ट इज द इंटीजर फैक्टर ऑफ पाई, विच मीन्स ये हमारे पास 0 हो जाएगा and it is basically a non-zero value. So from here it is clear that we are getting 1/0 which means infinity. तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी पर टेंड हो जाएगी. एंड जब कभी भी हमें लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है, देन वी गेट द पोल्स. सो क्लियरली दीज सिंगुलैरिटीज आर माय पोल्स हियर. एंड ये कैसे नंबर्स आ रहे हैं, सो द ऑप्शंस आर ऑल इंटीजर्स. क्या ये सभी इंटीजर्स हैं? नो, ये हमारे पास ऑड नंबर्स मिल रहे हैं. सो द फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट. इवन इंटीजर्स इनकरेक्ट, ऑड इंटीजर्स करेक्ट, all integers of the form this. तो अगर मैं यहाँ देखूँ, तो जो भी हमें integers मिले हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 times of 2k plus 1 कर दूँ, where k belongs to integers, so it is also correct, क्योंकि ये भी हमारे पास odd numbers ही देगा मुझे. So yes, the fourth option is also correct. So the correct options are C and D are my correct options. Okay. So now let's solve question number 3. So in this question, it is given that f of z is this, then f has isolated singularity, removable singularity, infinite many poles. Means हमें oral singularities के बारे में बात की जा रही है. Okay, so let's see. It is given to me f of z is equals to z minus 1 upon e power 2 pi iota divided by z minus 1. It is our function. And अब हमसे ये कह रहा है, अगर मैं देखूं तो z is equals to 1 पर हमें इसकी सिंगुलैरिटी चेक करनी है, क्या ये रिमूवल सिंगुलैरिटी देगा. सो वी कैन चेक इट. सो लेट्स चेक ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट. इसमें हमें गिवन है लिमिट z टेंस टू 1 पर अगर मैं अपने फंक्शन को चेक करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स लिमिट z टेंस टू 1 z माइनस 1 अपॉन e पावर 2 pi iota z minus 1. So from here it is 1 minus 1 upon, from here it is 1 minus 1. So it is 0.0 form. So clearly we can use our L'Hospital rule here. So let's use the L'Hospital rule. So from here we get that limit z tends to 1, it is actually 1, z का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा it becomes 1 divided by this becomes 2 pi iota times e power 2 pi iota z. तो अगर मैं अब यहाँ पे लिमिट रखता हूँ, so this becomes e power 2 pi iota z. So this is 1, so we get 1 upon 2 pi iota, which is a finite quantity, and that's why we can say that z is equals to 1 is a removable singularity. So the second option is correct. Okay, and then हमसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास z is equals to 1 एक removable singularity तो है, then f has infinitely many poles. तो क्या हमें f के लिए poles मिलेंगे? So to find out the poles, अगर मैं ऑप्शन नंबर C को देखूं, okay, so let me erase this part. So the option number C, ऑप्शन नंबर C में हमें पोल्स के बारे में चीजें फाइंड आउट करनी है.
तो मैं क्या करता हूँ, इसके डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, इट बिकम्स e power 2 pi iota by z minus 1 equals to 0. So from here e power 2 pi iota z is equals to 1. So e power 2 pi iota z is equals to e power 2n pi iota. So from here we get 2 pi iota z is equals to 2n pi iota. So 2 pi से 2 pi cancel out and iota से iota. So from here what we get, basically it is, okay, so wait students, it is not z, it is divided by z. Okay, so let's correct this, it is divided by z. So we get here 1 by z is equals to n. So from here z is equals to 1 upon n. We are getting where n belongs to integers. So clearly, since these are our poles and due to this n belongs to integer, we get infinite number of poles. So this third option is correct, that f has infinitely many poles. बट फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है मुझे इस पोल की ऑर्डर फाइंड आउट करनी है, तो अगर मुझे ऑर्डर निकालना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा था, कि जब कभी भी मुझे पोल का ऑर्डर निकालना होगा तो जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में है उसको एक फंक्शन h मान लेते हैं. सो लेट्स सपोज हियर इट इज h इज इक्वल्स टू e पावर 2 पाई आयोटा बाई z माइनस 1. और अगर मैं इस h में अपने मीन्स क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है, और ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम अपने पोल के पॉइंट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है, इट इज़ 1 अपॉन n. तो अगर मैं अपने 1 अपॉन n पॉइंट्स पर देखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इट बिकम्स e पावर 2 पाई आयोटा n एंड दिस वैल्यू इज 1 basically. So if I see here, yes, it is minus 1 also. So it is 1 minus 1, so we get 0. Then what we do, we will calculate the derivative of this. So this becomes, it is e power 2 pi iota divided by z, and then we will derivate this thing, we will derivate this thing with respect to z. So what we get, अगर मैं इसको डेरिवेट करूं तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, इट इज एक्चुअली 2 pi iota with a negative sign divided by z square. This will I get, and 1 का हो जाएगा डेरिवेटिव 0. और अगर इस पॉइंट पर अगर मैं क्या करता हूँ, h डैश में 1 by n रखता हूँ, तो यहाँ से इसकी वैल्यू तो हो जाएगी मेरे पास 1, एंड फ्रॉम हियर वी गेट minus 2 pi iota n square where n belongs to integers, so we get a non-zero value. और जब कभी भी मुझे नॉन जीरो वैल्यू मिलती है तो उसकी जो भी ऑर्डर होगी, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है, so the order will be 1. So that's why yes, it is order 1. So option number 4 is correct. तो अब हमसे ये बोल रहा है कि हमें ऑप्शन नंबर ए हमारे पास अभी लेफ्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए भी हम देख लेते हैं. Okay, so let me erase this part. Okay, so now let's see the option number A. So in the first option it is given that f has an isolated singularity at z is equals to 0. मीन्स हमें एक पॉइंट गिवन है z is equals to 0 पॉइंट, और हमें ये देखना है कि क्या इस पॉइंट पर हमें आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिलेगी. तो जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारे फंक्शन के लिए जो पोल्स हमारे पास आए थे, वो पोल्स क्या थे, वो पोल्स हमारे पास आए थे, इट इज एक्चुअली 1 अपॉन n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. दीज आर अवर पोल्स ऑफ द फंक्शन f ऑफ z. तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट पॉइंट निकालता हूँ, बेसिकली लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास हो जाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी and our pole is 1 upon n, so it is 1 upon infinity means 0, and 0 is what, because limit point of poles हमें क्या देता है, लेक्चर नंबर 2 में हमने सीखा था कि लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स हमें देते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज. इट इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, बट यहाँ पे तो हमसे कह रहा है कि इट इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, बट हमें तो मिल गया 0 is a non-isolated singularity, so the option number A is incorrect. So the correct options are B, C and D are my correct options. Okay. So now let's solve the next question. Basically this question asked in December 2013 in CSIRNet, and in this question it is given that, let me zoom out this question.
Okay, so in this question it is given that consider the function f defined by this. तो हमें एक फंक्शन गिवन है f of z is equals to 1 upon 1 minus z square, such that this is non-zero. Then which of the following is true? Option number A, it is f is an entire function. So it is clearly entire function means that ऐसा फंक्शन जिसके पास कोई भी पोल ना हो, बट क्लियरली इस फंक्शन से मुझे दिख रहा है कि मैं क्या लिख सकता हूँ. फ्रॉम दिस फंक्शन आई कैन से दैट द डिनोमिनेटर पार्ट, व्हेन वी पुट द डिनोमिनेटर पार्ट टू बी जीरो, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इट इज जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, एंड फ्रॉम हियर z is equals to, it is minus b plus minus square root of b square minus 4ac, means 5 divided by 2. So it is crystal clear from here that it is minus 1 plus root 5 by 2 is a one pole, and minus 1 minus root 5 by 2 is another pole. हमें यहाँ पर इसके लिए दो पोल्स यहाँ पे मिल रहे हैं. Now, so which means because we are getting the poles, so it is not a entire function. So the first option is incorrect. Now the second option में हमसे कह रहा है कि f has a simple pole at z is equals to 0. So at z is equals to 0 अगर मैं देखूं तो हमारे जो पॉइंट है, लेट मी चेक हियर, सेकंड ऑप्शन, at z is equals to 0 पर मुझे ऑर्डर चेक करना है कि हमारे पास उसका ऑर्डर 1 आता है कि नहीं. अगर 1 आएगा देन इट इज अ सिंपल पोल, अदरवाइज नॉट. सो लेट मी चेक. जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर पे है उसको कुछ मान लेते हैं. लेट सपोज h इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड स्क्वायर इज आवर फंक्शन, और अगर मैं 0 पर चेक करता हूँ सो इट इज 1 विच इज अ नॉन जीरो फंक्शन. मीन्स क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई, सो इट मीन्स कि इसका जो ऑर्डर होगा वो तो 0 है. बिकॉज अगर हमने क्वेश्चंस में देखा है कि जब कभी हमें 1 ऑर्डर मिलता है देन वी से that the order will be 1. जब कभी भी हमें second derivative मिलेगा then we say the order will be 2. But here because we are getting the non-zero value at h, so which means order is 0. So from here it is crystal clear that the second option is incorrect. Now let me see the, okay, yes, okay, now the third option में क्या कर रहे हैं मुझसे, let me clear this part. Okay, so wait students, yes, now let's see the part C. इसमें मुझसे कह रहा है कि f has a Taylor series expansion f of z is equals to this, where the coefficient an are defined as follows. Okay, so we have to check. देखिए हमें यहाँ पे क्या given है. It is given that in option number C, a naught की वैल्यू हमें 0 given है and a1 की वैल्यू हमारे पास 0 given है. तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो जो हमारे पास an होता है, an क्या होता है in Taylor series? It is nothing but the nth derivative of the function at, basically यहाँ पे expansion हो रहा है 0 के अराउंड. So it is 0 divided by n factorial. अब मैंने यहाँ पे खुद से 0 कैसे लिख दिया? So from here it is clear that अगर मैं देखूँ तो इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ? It is nothing but summation an times z minus 0 की पावर n, and where n is equals to 0 to infinity. तो ये जो हमारे पास पॉइंट होता है z minus z not all of point, it is basically 0 here. So that's why we are using our point 0. So from here it is, अगर मैं यहाँ पे a नॉट की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज द जीरोथ डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन की वैल्यू हमें 0 पर चाहिए अपॉन 0 फैक्टोरियल. द फंक्शंस वैल्यू एट 0 हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल, मीन्स 0 फैक्टोरियल इट इज 1. सो फ्रॉम हियर इट इज 1 बाई 1 विच मीन्स 1. बट हमें तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ओके, सो a नॉट की वैल्यू हमें 1 गिवन है. लेट मी करेक्ट दिस. यस, a नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, इट इज ट्रू. अब a1 की वैल्यू चेक करते हैं. अगर मैंने a1 की वैल्यू निकाली तो ये हो जाएगा हमारे पास f का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल. सो लेट मी फर्स्ट डेरिवेट इट. हमारे अगर f डैश z निकालते हैं तो हमारे पास हो जाएगा इट इज -1 अपॉन
1 माइनस जेड स्क्वेयर का होल स्क्वेयर into -1 minus 2z. So from here it is 1 plus 2z divided by 1 minus z square का whole square. तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ, so it becomes 1 divided by 1 and it is multiplied by 1. So we are getting 1 here, but see in the third option it is not 1, it is 0. Means in the third option we are getting a1 is equals to 0. So the third option is incorrect. In the fourth option, a0 is 1 and a1 is 1. So yes, it is correct. The correct option is D here. Clear? So now let's solve the next question. Okay, so this question is asked in June 2013 net exam. So in this question it is given that consider the function fz, which of the following are correct? Means it has zeros. Okay, so in each question it is asking about zeros. तो अगर मैं देखूँ तो हमारे कैसा फंक्शन गिवन है, इट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस कॉस जेड इज गिवन. तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो फॉर जीरोस फाइंड करने के लिए हम अपने न्यूमरेटर को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं. तो यहाँ मेरे पास दो केसेस आएंगे. फर्स्ट केस इज जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड the second case will arise when we put 1 minus cos z to be 0. So from here अगर मैं इस फंक्शन से देखूं तो मुझे एक्चुअली क्वेश्चंस में क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्वेश्चंस में जीरोस का ऑर्डर, कि हमारे पास कौन से ऑर्डर के जीरोस आएंगे. और हमारे पास फंक्शन का पॉइंट भी गिवन है दैट हमें एट 0 पर चेक करना है एंड 2 एंड पाई पर चेक करना है. तो अगर मैं सबसे पहले लेट मी चेक इट फर्स्ट फॉर एट z इज इक्वल्स टू 0 पर अगर मैं चेक करता हूँ अपने फंक्शन z स्क्वायर के लिए, तो हमें उसका ऑर्डर क्या मिलेगा. So let me check the order. So let's suppose the function h is z square. So clearly अगर मैं h पर 0 पुट करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा. Then अगर मैं h dash निकालता हूँ then what we get, it is 2z and definitely h dash 0 will be 0. Now the double dash will be over 2 and which is a non-zero value. So that's why the order of z square will be 2 here. और वहीं अगर मैं देखूं at z is equals to 0 अपने second function के लिए, so it is h is equals to 1 minus cos z. So from here h at 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, it is 1 minus 1 which means 0. अगर मैं h dash निकालता हूँ so it is sin z and definitely h dash 0 यानी कि sin 0 will be 0 here. अगर मैंने h double dash of z निकाला so which is cos z and double dash at 0 which is 1 which is non-zero value. So the non-zero value I'm getting for the second derivative which means the order will be 2 here. तो अगर मैं देखता हूँ कि हमें z स्क्वायर के लिए ऑर्डर 2 मिलता है एंड 1 माइनस कॉस z के लिए भी ऑर्डर 2 मिलता है, तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द ऑर्डर ऑफ f ऑफ z विल बी 2 प्लस 2 यानी कि इसका ऑर्डर मुझे 4 मिल जाता है. So the options are the function f has zeros of order 2 at 0. No. The function of f has order 4 at 0. Yes, the third option is correct. तो अब हमसे क्या पूछ रहा है. Now the next question is, let me erase this part. Okay. So now अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ने अब ये कहा कि मुझसे जीरोस तो निकालने हैं फॉर जीरोस, बट अब वहां पर पॉइंट चेंज हो गया. पॉइंट हमें दे दिया गया है 2 पाई एन. तो अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू ले लेता हूँ, लेट सपोज 2 पाई एन, और जहाँ पर n हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो इस केस में अगर मैंने ऑर्डर चेक किया लेट सपोज z स्क्वायर का, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा. तो इफ आई पुट h ऑफ 2 पाई एन so it becomes 2 pi n whole square which is a non-zero value, यानी कि z स्क्वायर के लिए जो ऑर्डर हमारे पास आया it becomes 0. और अगर मैंने सेकेंड फंक्शन के लिए ऑर्डर चेक किया लाइक h is equals to 1 minus cos z, so h of 2 pi n क्या हो जाएगा, it becomes 1 minus
cos of 2 pi n, and cos 2 pi n is 1. So it is 1 minus 1, which means 0. If I calculate h dash, so it is sine of z, and basically h dash of 2 pi n will be 0. Now if I calculate double dash, then double dash of h, it is actually cos z, and double dash at 2 pi n will be 1, which is non-zero value. So the order of this function will be 2 here. Now if I want to calculate the order of f of z, so we will add this value. So the order of the function f of z will be 0 plus 2. So its order will be 2 here. So now let me check the option number B. The function f has 0 of order 1. No, it is incorrect. The function f has order 2. Yes, it is correct. So the correct options are, basically it is C and D are my correct answers of this question. Okay, so let's see the question number 6. This question is asked in December 2012 NET exam. And in this question is given that which of the following function f are entire functions and have simple zeros at z is equals to iota k. Okay, for all z belongs to integers. अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की चर्चा करता हूँ, लेट्स सपोज ऑप्शन नंबर ए की हम बात करते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए में हमें गिवन है एक फंक्शन एफ ऑफ जेड फॉर सम एन इक्वल और ग्रेटर देन 1. क्यों ना मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एन की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लिया सिंप्लिसिटी के लिए. तो हमारा एफ ऑफ जेड क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जेड बिकम्स a1 z पावर 1 प्लस a नॉट. सो दिस विल बिकम अवर फंक्शन. अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चेक करना है कि एट z इज इक्वल्स टू आयोटा k, जो हमें पॉइंट गिवन है z इज इक्वल्स टू आयोटा k, इस पॉइंट पर हमें सिंपल जीरोस मिलते हैं. यानी कि अगर इस पॉइंट पर मैं जीरोस का ऑर्डर निकालूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जीरो का ऑर्डर क्या होगा. सो सबसे पहले तो हमें इसके लिए जीरो निकालना पड़ेगा. तो जीरोस हमारे पास कैसे आते हैं, a1z प्लस a नॉट को अगर मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूं, तो यहाँ से हमें जीरोस मिल जाएंगे. बट इफ आई वांट टू कैलकुलेट ओनली द ऑर्डर, तो मैं इसको एक फंक्शन h मान लेता हूँ. सो h इज नथिंग बट a1z प्लस a नॉट. और अगर मैंने z की वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट की लाइक आयोटा k, सो दिस बिकम्स a1 टाइम्स, ओके, सो बेसिकली दिस बिकम्स a1 टाइम्स आयोटा k प्लस a नॉट. अच्छा, नाउ सी, अब यहाँ पर हमारे पास जो a1 है और a नॉट है, ये तो हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है. सो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे कांस्टेंट डिफाइन कर सकता हूँ. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे a1 की वैल्यू और a नॉट की वैल्यू कुछ डिफाइन कर दी. सपोज इफ आई हैव टेकन a1 टू बी आयोटा एंड a नॉट को मैंने 1 ले लिया, एंड डेफिनेटली k हमारे पास एक इंटीजर है, तो k की वैल्यू भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ. लेट्स सपोज k की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा इंटू 1 प्लस 1. It is iota square plus 1 and iota square is minus 1 plus 1. So we are getting 0. यानी कि h पर हमें ये फंक्शन 0 मिल रहा है. तो हम यहाँ क्या करते हैं, h डैश निकालते हैं. जैसे ही मैंने h डैश ऑफ z निकाला, so it becomes a1 and z का हो गया डेरिवेटिव 1, a नॉट का 0. So a1 will be our non-zero here. यानी कि इस केस में हमें यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या मिल गया, ऑर्डर विल बी 1. यानी कि यस, हमें जो भी जीरो मिलेंगे वो सिंपल जीरोस मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर 1 मिल रहा है. सो अवर दिस फंक्शन बेसिकली सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल जीरोस. अच्छा, फिर यहाँ पे हमसे कहा जा रहा था कि द फंक्शन आर इंटायर फंक्शन. इज इट अ इंटायर फंक्शन? यस, इट इज इंटायर फंक्शन. इट हैज नो पोल बेसिकली. द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स सॉल्व द ऑप्शन नंबर 2. Let me erase this part. Okay, so now let's solve this option number 2. What is in the second option? It is given that f of z is equals to a times sine of 2 pi iota z. It is given for some a belongs to integer. Okay, c. So हमें क्या यहाँ पे करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि at z is equals to iota k पर
क्या हमें यहाँ पर एक्चुअली एक सिंपल जीरो मिल रहा है इस पॉइंट के लिए? सो लेट्स सी द ऑर्डर फर्स्ट। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने न्यूमरेटर को एक फंक्शन मान लेते हैं, a टाइम्स साइन ऑफ इट इज 2 पाई आयोटा z। सो h ऑफ आयोटा k की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी a टाइम्स it is sine 2 pi iota and here it is iota k. So this becomes a times sine of 2 pi k and it is iota square is minus 1. So minus will become outside and this value will be 0. तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो गई 0. Then we will calculate the derivative. So h dash of z हमारे पास क्या हो जाता है? This becomes a times 2 pi iota times cos 2 pi iota z. जैसे ही मैंने z की वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट की आयोटा k, सो दिस बिकम्स 2 पाई a आयोटा टाइम्स it is cos of, now k will be iota, sorry, it is not k, it is actually z. Okay, yes, it is z. Now we will put the value of z. So this becomes iota k. So iota square will be minus 1 and cos में minus का कोई मतलब होता नहीं है. So this will be actually 1. So from here we are getting 2 pi a iota which is a non-zero value, and whenever we get the non-zero value then we get the order. So the order is the 1 here, यानी कि हमें सेकंड फंक्शन के लिए ऑर्डर तो 1 मिल रहा है. क्या हमें इसके लिए कोई यू कैन से पोल मिल रहा है? नो, इट इज नो, दे हैज नो पोल्स. So the second option is also correct. Now let's solve this option number C also. Okay, wait students. Okay, so let's erase this part. Okay, so now let's solve this option number C. Option number C में हमें क्या given है? It is given that the function f of z is equals to b times cos 2 pi iota z minus 1 by 4. It is the function. तो अगर मैं अपने फंक्शन को डिफाइन करूँ तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ सिंप्लीफाई करके. इट इज cos ऑफ, जैसे मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया 2 पाई से, इट बिकम्स 2 पाई iota z माइनस पाई बाई 2. सो pi by 2 minus theta, this becomes actually b times sine 2 pi z. Yes, because मैं देखता हूँ अगर 90 degree minus theta it will be always positive and cos will be converted to sine. Okay, and where b is any constant. So if I see this function then it is nothing but it is our same function with the second option. Let's see सेकंड ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास करेक्ट आया था, और जैसे हमने थर्ड फंक्शन को सॉल्व किया तो ये तो हमारे पास सेकंड वाले फंक्शन के सिमिलर ही बन गया. लेट्स सी वेयर b हमारे पास कोई कांस्टेंट था और यहाँ पे a हमारे पास कोई कांस्टेंट था. सो इट इज ओनली अ कांस्टेंट, बट जो फंक्शन हमारे पास है sin 2 pi iota z एंड हियर आल्सो sin 2 pi iota z. So third option is correct automatically because it is solved. Okay, so now let's solve the option number D. Okay, so in the option number D it is given that we have a function f of z is equals to e power c times z, where c is any constant. Okay, so now let's see, हमें चेक करना है z is equals to iota k पॉइंट के लिए. तो अगर मैंने यहाँ पे चेक किया इसका ऑर्डर तो क्या हो जाएगा? इट इज h is equals to e power c z. जैसे ही मैंने यहाँ पे iota k रखा so it becomes e power c times iota k. एंड अगर मैं यहाँ पे देखूँ, okay, so it is nothing but e power iota k. So let me see this here. Okay, so actually यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास c तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. तो अगर लेट सपोज कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये वैल्यू है, ये तो हमारे पास वैसे ही नॉन जीरो वैल्यू आ रही है. इट इज अ नॉन जीरो वैल्यू बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी पाई हियर. So that's why we can say its order will be 0.
बट हमें तो चाहिए सिंपल पोल्स, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर 1 होना चाहिए. सो इट मीन्स दैट ऑप्शन नंबर 4 is incorrect and C was correct. So A, B and C are my correct options of this question. Okay, now let's solve this next question. This question is asked in December 2013 net exam, and in this question it is given that the function f defined from C to C such that this, and हमें यहाँ पे इनके zeros के बारे में find out बात करनी है. Okay, so let's solve this question. सो अगर मुझे जीरोस के बारे में यहाँ बात करनी है तो मैं क्या करता हूँ, इसके न्यूमरेटर पार्ट को जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा. सो फ्रॉम हियर वी गेट ई पावर जेड इज इक्वल्स टू, इट इज एक्चुअली माइनस ई पावर माइनस जेड. सो इट बिकम्स ई पावर जेड इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ई पावर जेड. सो इट इज ई पावर 2z is equals to minus 1. So e power 2z is equals to, so basically minus 1 can be written as e power 2n plus 1 with pi by 2 iota. yes. अच्छा, तो इस पे वाली बेसिकली इस पर मुझे यहाँ पर -1 वैल्यू क्यों मिलती है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो आई कैन राइट हियर cos ऑफ 2n plus 1 pi by 2 plus iota times sin of 2n plus 1 pi iota by 2. सो pi by 2 का मल्टीपल के लिए साइन की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर एक्चुअली, ओके, सो मुझे एक्चुअली -1 चाहिए, एंड बिकॉज वी नीड हियर -1, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं. लेट मी सी. ओके, यस. सो इन दिस क्वेश्चन बेसिकली व्हाट वी नीड द जीरोस. और जीरोस हमें कैसे मिल सकते हैं, जीरोस हमें मिल सकते हैं अगर मैं अपने न्यूमरेटर पार्ट को जीरो करता हूँ, विच मीन्स ई पावर जेड इज इक्वल्स टू माइनस ई पावर माइनस जेड. सो इट इज -1 अपॉन ई पावर जेड. सो दिस बिकम्स ई पावर 2z इज इक्वल्स टू -1. तो यहाँ पे बात ये होती है कि हमें एक्चुअली में क्या चाहिए. वी नीड कि मैं कॉस में ऐसा क्या रखूं कि मुझे -1 मिल जाए, एंड साइन में मैं ऐसा कौन सा एंगल रखूं कि मुझे 0 मिल जाए, ताकि यहाँ से मैं ई पावर आयोटा को डिफाइन कर सकूं. सो डेफिनेटली -1 मुझे कब मिल सकता है, जब मैं यहाँ पे ऑड मल्टीपल रखता हूँ. सो इट इज ऑड मल्टीपल. yes, it is pi, not pi by 2. okay, so let me clear this pi by 2 here. so this is only the odd multiple of pi. so yes, now it is clear, because जैसे ही मैंने यहाँ पे odd multiple of pi रखा, तो sin will be 0 and cos will be -1. okay, so now this becomes, it is actually 2z is equals to 2n plus 1 pi iota, and from here z is equals to 2n plus 1 by 2 pi iota for all n belongs to integers. These are our zeros over here. yeah, these are the zeros of our function. so the options are, अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास क्योंकि n इंटीजर से आ रहा है, so definitely we are getting the infinite number of zeros. so the first option, finitely many zeros, incorrect. No zeros, incorrect. Only real zeros, no. We are getting the imaginary part, which means complex zeros, incorrect. Infinitely many zeros, yes. So the D option is correct option. okay, so now let's solve this question. This question is asked in 2008 GATE exam. In this question it is given that we have a function f of z has non-zeros, z belongs to complex numbers, and f of 0 is 0. Then f of z has a 0 at z is equals to 0. यानी कि हमको उसके एक्चुअली ऑर्डर बतानी है जीरोस के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फंक्शन. हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल्स टू cos z माइनस sin z बाई z. दिस इज द फंक्शन. तो इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज z टाइम्स cos z माइनस sin z डिवाइडेड बाई z. सो इफ आई सी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसके जीरोस का ऑर्डर. तो अगर मुझे इसके जीरोस का ऑर्डर चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके न्यूमरेटर पार्ट को एक फंक्शन h मान लेता हूँ और उसका ऑर्डर निकाल देंगे एट 0 पॉइंट. सो z को अगर मैंने 0
पर निकालना चाहे इसका ऑर्डर एट z इज इक्वल्स टू 0, देन आवर फंक्शन h इज एक्चुअली z टाइम्स cos z माइनस sin z। और जैसे ही मैंने इस h में अपने फंक्शन की वैल्यू रखी 0, सो इट इज गोइंग टू बी 0। देन मैंने h डैश निकाला, सो इट इज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन का डेरिवेशन विच इज माइनस sin z माइनस cos sin का हो जाएगा मेरे पास cos, एंड हियर इट इज सेकेंड फंक्शन cos z। So cos z will be cos z cancel out, and from here it is actually minus z times sin of z. So अगर मैंने यहाँ पे h dash में 0 put किया, so it is 0. Now we will calculate the second order derivative. So this becomes minus, first function is z, second function is sin, so it becomes cos z. Now it is minus sin z as it is, z का हो गया 1. यहाँ पर अगर मैंने h double dash 0 रखा, so this becomes actually it is 0. Okay, so basically अगर मैंने यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 0 पुट किया, so this value will be 0 and this value also becomes 0. सेकेंड ऑर्डर भी हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब कि जब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, ओके, सो बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो इसका ऑर्डर 0 तो नहीं आया, 1 is not order, 2 is not order, so 1 is the option, which means D is correct. Okay, now let's solve this question. This question is asked in 2008 GATE exam. So in this question it is given that f of z, अच्छा ये तो हमारे पास okay, so हमारे पास एक फंक्शन है and it is the same function which is asked, which is cos z minus sin z divided by z is the function, and it is also given that f of 0 is 0. Now हमारे पास एक फंक्शन है g of z which is sin hyperbolic z, एंड अब हमसे ये पूछ रहा है कि हमारे पास g of z अपॉन z टाइम्स f of z के जो पोल होंगे उनके पोल का ऑर्डर हमें फाइंड करना है एट z इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट पर। तो सबसे पहले अगर मुझे एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का पोल कैसे निकाल सकता हूँ मैं, उसके डिनोमिनेटर पार्ट को 0 करके। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसके डिनोमिनेटर पार्ट को 0 करता हूँ, सो दिस बिकम्स z टाइम्स f of z इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेट मी सी दैट it becomes actually z times and f of z is this, so it becomes cos z minus sin z divided by z. So our function becomes, and this value will be equal to 0, so it is z times cos z minus sin z। इसे एक्चुअली हम एक फंक्शन मान लेते हैं h, जिसका मुझे पोल निकालना है, तो इसको मैंने मान लिया एक फंक्शन h, और जैसे ही मैंने इस h पर अपने पॉइंट को रखा विच इज पॉइंट z इज इक्वल्स टू 0, सो दिस वैल्यू विल बी 0 हियर। देन अगर मैंने यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सो द फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी द फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, क्यों ना मैं इसको लिमिट से निकाल लेता हूँ। लेट्स सपोज लिमिट z टेंड्स टू 0 and it is h of z minus h of 0 divided by it is z minus 0. So this becomes limit z tends to 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी z times cos z and h of 0 will be 0 here divided by z, so it is cos 0, and actually cos 0 हमारे पास क्या हो जाता है, it is nothing but 1. So from here actually we are getting it is a non-zero value, and because अगर मैं यहाँ देखूँ, okay, so h of z we are calculating, and okay, सी यहाँ पे हमसे क्या मिस्टेक हो रही है, लाइक अगर मैं अपने फंक्शन को डायरेक्टली निकालता हूँ, लेट मी सी व्हाट वी आर गेटिंग। अगर मैंने क्या किया, मैंने अपने फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, सो इट इज एच डैश, एच डैश क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन
प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन. Cos cos will be cancelled out. So from here h dash at 0 will be 0. Now we will calculate second derivative. Second derivative will be first function into second function का derivation. It is first function second function का derivation, then second function first function का derivation. Again we are getting 0 at 0 point. So clearly 1 is not the. अच्छा मुझे थर्ड ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा बिकॉज हमें ऑर्डर 3 भी गिवन है. लेट मी चेक. अगर मैंने इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन निकाला सो इट इज माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डेरिवेशन विच इज माइनस साइन सो इट इज प्लस एंड सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेशन माइनस साइन का होता है हमारे पास कॉस. सो दिस बिकम्स एच ट्रिपल डैश एट जीरो. हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस साइन विल बी जीरो एंड दिस इज वन, so it is minus 2 and minus 2 is non-zero value. That's why the third option is my correct. Okay, so आज के लिए इतना ही, और हम लोग अभी इसके और क्वेश्चंस कर रहे हैं from 2013 to 2025 PYQs. Okay, thank you.